Okay, guys, now trigonometry. Okay, we have already discussed some part of trigonometry, and now we are going to discuss about unit circle first. So it is a simple concept. It's just that कि हमारे पास कैलकुलेटर है इसलिए हमारे लिए इजी है. Okay, for AA and HL students, ASL students, it is bit tough, but we have calculator, so we will get all our answers on calculator only. But it is important to understand the concept. ठीक है? So what is the meaning of unit circle? Unit circle मतलब क्या? A circle with the radius 1. A circle with radius what? 1. Now we are drawing this circle on XY axis with its center at origin. So the radius of the circle is what? Radius of circle is 1. What is the radius of circle? 1. Right? Now, just imagine a triangle here. Just imagine a triangle here. अभी यहाँ का अगर तुम triangle यहाँ पे निकालो, so let's say this angle is theta, this angle is theta, the radius is 1. Radius is equals to 1. This is opposite side, this is adjacent side. Okay? So now what I'm going to do, whatever the coordinates are there, coordinates are always in x comma y form, right? I will write down opposite and adjacent ka values. So using sin theta is equals to opposite upon hypotenuse, that is here nothing but opposite upon hypotenuse, that is radius, which is 1. So if you compare this, you get sin theta equals to opposite side, correct? First. Second, if you use cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, that is nothing but a upon 1. So here a is again equals to cos theta. Yes or no? How many of you understood points here? Points till here, please raise your hands. यहाँ तक मैंने जो भी लिखा है, those who have understood, please raise your hands. Very good, guys. Right? Now, understand one thing. Whatever is my x-axis, it is nothing but distance, which is this one. Correct? And this horizontal distance we have taken as a, and a ka value is nothing but cos theta. It means what? My x coordinate here is cos theta. What is my x coordinate? Cos theta. And y coordinate is nothing but distance, vertical distance, and vertical distance here I have taken as o. So o is nothing but sin theta. So coordinates in trigonometry, x comma y, are taken as what? Cos theta comma sin theta. Correct? Now I am taking these coordinates as cos theta comma sin theta. But what if यहाँ पे ये 1 की जगह let's say कोई other value होता, let's say this is not a unit circle, this is some circle with radius 3. Correct? So the coordinates will become r cos theta comma r sin theta. Getting it? So this is what you need to remember or keep in mind कि हमारे circle के coordinates when origin is at the center are always r cos theta, r sin theta. Those who have understood this, please raise your hands. Those who have understood, please raise your hands. Very good. Very good, guys. ठीक है? Okay. Now, if you have understood this, now these coordinates, यहाँ पे x comma y लिखा है. Here I can write it as x comma minus y because ये नीचे आ रहा है below x axis. Here I can write it as minus x comma y, and here again I can write it as minus x comma minus y. Yes or no? It means this is first quadrant, second quadrant, third quadrant. This one is the third quadrant, and this is fourth quadrant. Correct? Now, if you remember, you need to keep in mind the basic diagram of the basic shape of sine and cos. So this is y equals to sin x, and this is y equals to cos x. Okay? Y equals to sin x and y equals to cos x. So sine graph always starts from 0, and for first thing here we will write down 360 degrees. Let's not get confused between radians and degrees. पहले इसको 360 degree लिख लेते हैं. It always starts from 0. Sine is highest at 90 degree. यहाँ पे 180, यहाँ पे 270. This is 90 degree. This is 180. This is 270. ठीक है? These are two basic graphs of what? These are two basic graphs of trigonometric functions, that is sine and cos. Okay?
जस्ट वी हैव अंडरस्टूड द यूनिट सर्कल. तो यूनिट सर्कल में हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो भी कोऑर्डिनेट्स है, आई कैन टेक सेम वैल्यूज जस्ट विथ नेगेटिव साइंस. I can take what? Same values just with negative signs. Correct? So, taking it forward, now I will draw a circle with the help of these diagrams. ठीक है? I have drawn one simple circle. Again, x, this is the origin. Now here tell me 0 to 180 degrees. This is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degrees and complete 360 degrees. Okay? In 0 to 180 degrees, this is first quadrant, second quadrant. Two quadrants are getting covered. And sine graph is positive. Yes or no? So here, if I take coordinate cos theta comma sine theta, in first quadrant, if you see in first quadrant, my cos is also positive because it is above x-axis, and my sine is also positive in first quadrant. That's why in first quadrant, all trigonometric functions are positive. How many of you getting this? Whatever I'm just explaining, how many of you getting it? Please raise your hands. ईशान गारखेड़कर चला गया वापस. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, second quadrant. This is my second quadrant. In second quadrant, my sign is positive. In second quadrant, sign is positive, but here cos is negative. Cos is what? Negative. Same thing. If you have drawn angle with some angle theta here, here as well, it will become minus cos theta comma sine theta. So what we have done? Unit circle is nothing but combination of these individual diagrams. समझ में आ रहा है? इसका 0 to 360 यहां पे प्लॉट कर दिया है, इसका 0 to 360 यहां पे प्लॉट कर दिया है in this circle. Getting it? If you look at the third quadrant, in third quadrant, if you see here, sine is negative as well as cos is negative. So here sine is negative and cos is also negative. अगर तुम यही डायग्राम यहां पे ड्रॉ करो, so these are your x, y coordinates, and in third quadrant both x and y are negative, and x is your cos theta and y is your sine theta. Getting it or not? So unit circle, अभी तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा. यूनिट सर्कल इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल चार्ट्स ऑफ साइन एंड कॉस combined together as x comma y coordinates. How many of you understood now? Please raise your hands. Those who have understood now, please raise your hands. Okay. ठीक है, everyone. Fine. Why we are learning this? इसको तो हम सीधा सीधा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बट एक चीज इसमें बस ये ध्यान में रखनी है. If you know something in first quadrant, you can find it in all other quadrants as well. Getting it or not? बस एंगल की वैल्यू तुमको निकालते आनी चाहिए. You should know how to calculate the value of angle. ठीक है? Now, I will take you towards trigonometric identities. Trigonometric identities. Now, what are trigonometric identities? First trigonometric identity is sine square theta plus cos square theta equals to 1. Right? Second identity is tan theta is equals to sine theta upon cos theta. You have these two identities in your syllabus, right? How many of you remember both of these? Please raise your hands. Both of these. Okay. Harshil. Sine square theta है ना? Yes. Sine square theta, cos square theta. Just a second, guys. Okay. ठीक है. Fine. Okay. These are the only trigonometric identities you have, and apart from this, what is there? See, this is what we have just seen now. देखो, I just explained you this thing कि यहाँ पे एक triangle है. This side is cos, this side is sine when radius is 1. Getting it? After that, this is the diagram I explained you कि यहां पे तुम जो भी ग्राफ निकालोगे उसका 90 डिग्री इज फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर सर्कल, नेक्स्ट 90 इज सेकंड क्वाड्रेंट फॉर द सर्कल. या आई विल एक्सप्लेन यू इन टर्म्स ऑफ रेडियंस एज वेल. आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि जब भी मैं डिग्रीज और रेडियंस की साइड वाइज में बात करता हूं स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं. आई डोंट वांट दैट टू हैपन, दैट्स व्हाई. ठीक है?
यू ओके, क्वाड्रेंट्स ठीक है. Okay, now see guys, next part. What is the next part? If we have, yes, identities are sin square theta plus cos square theta is equals to 1 and tan theta is sin theta upon cos theta. ठीक है, और इसमें कुछ आइडेंटिटीज हो गए एडिशनल, तो वी विल सी, बट लुक एट दिस पॉइंट नाउ गाइज. एक सिंपल सा डेरिवेशन देखो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स से दिस इज हाइपोटेनियस, adjacent, sorry, opposite and adjacent. This is theta. Okay, now in this triangle if I find sin theta, it will be opposite upon hypotenuse, yes or no? If I tell you this angle, this is 90 degree, guys, what will be this angle? ये angle क्या होगा बताओ? What will be the value of that angle? जल्दी. 90 minus theta. Very good. Angle sum in a triangle is 180. So this is 90. 90 is already gone. This is theta. The remaining will be what? This is already 90. 90 plus theta. 180 minus 90 plus theta is 90 minus theta. ठीक है? Okay. For this, if you write down cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, then you will get 90 minus theta का cos. So this will be the adjacent side for 90 minus cos theta. This will be the adjacent side upon hypotenuse. So on right hand side, if you see opposite upon hypotenuse is equal, it means what? Sin theta will be equals to cos 90 minus theta. So तुमको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है. What is that? The thing is, whenever any angle is changing from vertical axis, let's say I have written sin 90 minus theta, let's say I have written cos 90 plus theta. If it is changing because of vertical axis की वजह से अगर चेंज हो रहा है, so sin will become cos and cos will become sin. Getting it or not? If it happens because of horizontal axis, that is because of 180 degree, there will be no change. Cos will remain cos, sin will remain sin. How many of you understanding it? Raise your hands. ठीक है? So you need to keep in mind only 3 rules. What are those 3 rules? देखो सबसे पहला rule, if you have been asked any question like this, how you will answer it? So the first rule, check if it is happening because of vertical axis, that is y axis, or that is y axis, या horizontal, that is x axis. x axis से हो रहा है या y axis से हो रहा है, check करो. Okay, if it is happening because of vertical axis, then your sin will get converted into cos, your cos will get converted into sin. Yes or no? If it is happening because of horizontal axis, your sin will remain sin, your cos will remain cos. ठीक है? Now the last point, the third step. ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था. थर्ड स्टेप, you just have to think of the sin, SIGN. What will be the value of the final function? जैसे if I write cos 90 plus theta, what I have written? Cos 90 plus theta. Now I know 90 is a vertical. It means cos is going to become sin. Yes or no? It will become sin theta. It will become what? This is what I just explained. 90 minus theta हो, 90 plus theta हो, it will get converted into the theta itself. ठीक है? किधर प्लस साइन? अरे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस y एक्सिस. हाँ, तो उसी के लिए बता रहा हूं कि अगर तुमको क्वेश्चन में दिया है cos 90 प्लस थीटा, क्या दिया है? 90 मीन्स व्हाट? वर्टिकल एक्सिस आ जाएगा. सो वर्टिकल एक्सिस के बाद एंगल किधर जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. सो साइन तुमको आइडेंटिफाई करना है. इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज व्हाट? रॉन्ग. इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव. सो टू रिमेंबर दिस, यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या याद रखेंगे? हाँ. So after school to college, so all trigonometric functions are positive in first quadrant, only sin is positive in second quadrant. So is cos positive in second quadrant? No. So answer will be negative sin theta. How many of you understanding this, guys? Please raise your hands. I'll explain this one more time, don't worry, but in the first attempt, how many of you understood? Please raise your hands.
वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन, नाइस। ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कोई भी कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं इनको, कंपाउंड एंगल्स, बड़ा वाला एंगल अगर दिया है, सो लेट्स से इफ आई एम गिविंग यू एंगल लाइक दिस, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। ये तुम कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व कर पाओगे। इफ आई गिव यू साइन 91 पाई बाय 3 या 91 पाई बाय 3, नाउ एक बार रेडियन और डिग्रीज का कन्वर्जन लिख लो, बस रेडियन एंड डिग्रीज। ठीक है, पाई इज 180, पाई इज 180, then pi by 2 is 90, then pi by 4 is 45. I have just divided pi by 2 and pi by 4, so I got 45. After this, pi by 3 is 60 and pi by 6 is 30. Okay, if you can remember it, very good, बहुत अच्छा होगा अगर तुम इसको याद कर लो, because maximum times you will have to keep on converting in calculator. Getting it or not? And in calculator you don't get exact value of pi. Your pi always get converted into 3.16 if you directly calculate it. Getting it? So here I have written pi by 3. Now question is asking me simplify. Simplify बोला है question ने, क्या बोला है? Simplify. And what we know only for this. अभी यहां पे pi by 3 बोला है, तो you will be able to find the answer directly. डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बिकॉज पाई इज डिफाइंड। इफ आई राइट साइन 37 पाई प्लस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी 37 पाई प्लस थीटा, राइट गाइज? कैन एनीवन आंसर दिस? व्हाट 37 पाई प्लस थीटा विल बी फॉर साइन? यू कांट गेट बिकॉज थीटा इज नॉट डिफाइंड हियर, यू कांट गेट इट इन एनसॉल्व। एनीवन? ईशान, हर्षिल, साहिल, स्मेरा? यू गाइज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यस और नो बोलो। हाँ तो यस, ना तो नो। ईशान, हर्षिल, स्मेरा? ओके, या तो मेरी आवाज उन तक लेट पहुंच रही है या ऐसा कुछ। देखो गाइज, एक चीज तुम हमेशा याद रखो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर साइन और कॉस, साइन है या कॉस है, दे रिपीट आफ्टर 2 पाई। दे रिपीट आफ्टर व्हाट? 2 पाई और 360 डिग्रीज। ठीक है, इफ पॉसिबल कन्वर्ट दिस एंगल इन 2 पाई का मल्टीपल। मतलब ये जो 37 पाई लिखा है, इट कैन बी रिटन एज 36 पाई प्लस पाई। यस और नो? It can be done like this, correct? And 36 pi is nothing but 2 times 9, yeah, 19 times 2 pi. 19 times what? 19 to the 18, 36, 18 times 2 pi. 18 times what? 2 pi. So ये तो 18 times, तो इसकी वैल्यू रिपीट हुई होने वाली है, करेक्ट? तो इसको मैं इधर ही ड्रॉप कर देता हूं, बिकॉज 18 टाइम्स, सो 1 2 3, मतलब वो घूम फिर के 18 के बाद में वापस से ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट पे ही आने वाला है, ओरिजिनल एक्सिस पे जहां से हम कैलकुलेट करते हैं एंगल। इट मींस आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट पाई प्लस थीटा फॉर साइन। गेटिंग इट और नॉट? नाउ साइन पाई प्लस थीटा, पाई मींस व्हाट? पाई मींस 180, इट मींस इट इज गोइंग इन थीटा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो इट विल बी नेगेटिव साइन थीटा। The answer will be negative sin theta. Getting it or not? लॉजिक समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल है, कैसा है? हॉरिजॉन्टल में साइन कन्वर्ट होने के बाद साइन ही रहेगा, कॉस नहीं बनेगा, सिर्फ वर्टिकल की वजह से कॉस बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? यस गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, ठीक है, ओके okay? इसको कॉपी कर लो एक बार, जस्ट राइट इट डाउन एवरीवन। यस यस,
Okay, guys, those who are done writing, please raise your hands. Okay. बाकी others? साहिल, ईशान, हर्षिल. Okay, guys, let's move further. देखो, these are the two identities that we have written just now. Tan theta, sin square theta, cos square theta is equals to 1. Right? See, note that the notation sin square theta is the same as sin theta square. This is important. Never get confused in this. If I write sin square theta or I write sin theta square, both mean the same thing. इसमें बहुत सी बार confusion हो जाता है. And it is not equals to sin theta square. It is not equals to sin theta square. This is not. Sin theta square is ultimately different thing. Getting it or not? Write this down. How many of you understood this? Raise your hands. Those who understood it, please raise your hands. Okay, very good. Okay, let's move further. Yes. Yes, guys. See, this is the formula. Not formula, this is the sample question. Now, there are some questions in AIHL as well where you can't use the calculator. Oh, guys, ईशान गारखेड़कर, ईशान गारखेड़कर, इधर क्लास चालू है और तू इधर क्लास के क्लास में फोन कर रहा है. शर्म आ रही है तुझे? हाँ, ही इज नॉट इन एचएल ना. यस. सी, देखो गाइज, नाउ क्वेश्चन इज गिवन इन साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म. व्हाट फॉर्म? एंड दिस आंसर इज इन व्हाट फॉर्म? कॉस. सो साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है. ये हमको दिमाग लगाते आना चाहिए बस. देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी. व्हाट इज दैट? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. सो साइन स्क्वायर एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. So if you just substitute it here, you will be getting 2 times 1 minus cos square x minus cos x equals to 0. So it will become 2 minus 2 cos square x minus cos x equals to 0. Correct? यहाँ पे प्लस सी भी लिखा है ना, so प्लस सी equals to 0. cos square x. ठीक है? नाउ टेक एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड, क्योंकि देखो यहां पे क्या बोला है, ए बी सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड. सो यू कैन राइट टू आंसर्स हियर. व्हाट विल बी योर टू आंसर्स? कि तुमने लिख दिया -2 cos square x माइनस cos x
प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक हो सकता है, बट वी अवॉइड टू राइट square coefficient as negative. We always try to write first coefficient as positive. If you take it to the right hand side, it will become 2 cos square x plus cos x minus 2 equals to 0. So your a, b and c will be, a will be equals to 2, b will be equals to 1 and c will be equals to minus 2. That's it. How many of you understood it? Please raise your hands. Very good, guys. Okay. Now, next part. Solving trigonometric equations. Okay. Okay, now we are into the trigonometric equations which we were going to solve. Guys, now see, देखो, the function is given as sin x. What is the given function? Sin x. Okay, this is the graph of sin x. This is the simple graph of sin x. Now we have learnt 3 transformations. First one is translation, second one is stretch, and third one is reflection. Yes or no? So if I do stretch in this first, अगर मैं इसमें पहले stretch करता हूं, let's say I did a vertical stretch with scale factor a. What is the stretch factor of vertical sketch? A. So my function will become y equals to a times sin x. What will be the function? A times sin x. If I do horizontal stretch by scale factor 1 upon b, by what? 1 upon b. So my function will become a times sin bx. What it will become? Bx. If I do horizontal translation by scale factor c, by what? So y is equals to a sin b. Now it is a horizontal translation. What is it? In horizontal translation, we write it in terms of x with x, but ulta. X के साथ हमेशा उल्टा लिखते हैं. And if vertical translation by d, तो पूरे के पूरे function में add कर देते हैं. Getting it or not? So this is how your basic trigonometric function is transformed into this. How many of you understood this part? Please raise your hands. Now every term here has some meaning. I'll explain you that as well. But how I transformed it from one form to other form, those who have understood, please raise your hands. Smira. Okay, fine. ठीक है? Now see, we will write down some formulas for A, B and C. C के लिए तो as such कोई formula नहीं है, but vertical stretch, that is A. A is called as amplitude. What is it called? Amplitude. And amplitude is nothing but what? See, every wave has highest and the lowest value. So this is the maximum value, this is the minimum value, correct, of the wave. Trigonometric functions, sine function and cos function are called as sinusoidal functions. What functions? Sinusoidal functions. Sinusoidal functions have what? Periodic behavior. After a certain period, they starts repeating the same graph, correct? So amplitude is given as what? Amplitude is nothing but maximum value minus minimum value upon 2. If you know the maximum value of your graph, if you know the minimum value of your graph, you can find the amplitude of the graph. Getting it or not? That is A, vertical stretch. Then B. B से पहले हम D निकालते हैं. D is nothing but what? D is nothing but the principal axis. Principal axis. Principal axis is nothing but the mean position of the graph. Mean position कैसे निकालेंगे? Mean position is the average. Average of what? Maximum value plus minimum value upon 2. Never get confused in this. ठीक है? Then B. B is nothing but 2 pi upon T, or you can say 360 degree upon T. T means what? Time period of the wave. Usually every wave have time period of 360 degree in sine and cos. So that's why my B ka value is always 1, because 360 upon 360 is 1.
Getting it or not? So here this time period is calculated in terms of angle. Angle can be in degrees or angle can be in radians. Getting it or not? On the basis of this, you can get trigonometric modeling functions. When you solve questions, you might get trigonometric modeling functions, and it will be helpful in that. समझ में आ रहा है? Horizontal translation. How many of you understood till here? Please raise your hands, guys. In stretch, you add with the entire function. उसके horizontal stretch. In horizontal stretch, we multiply by the reciprocal of the scale factor. That is the scale factor ना गधे. तो वहां पे ऊपर देख क्या लिखा है, यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ क्यू एक्स लिखा है कि नहीं? तो ये रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं? अंधे. ओके, ठीक है. ईशान गारखेड़कर, साहिल, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. स्मेरा एंड हर्षिल, यस और नो? ये क्या है? कौन है ये वाला? हर्षिल, वाह बेटा, आज सब लोग मुझे एटीट्यूड दिखा रहे. मतलब फोन किया इसको, ये बोलता है हेलो. मतलब क्या? हाँ यस, ऐसे फोन किया मुझे, मैंने फोन किया और मुझे बोलता है हाँ यस. क्या ये? हाँ मजाक चल रहा है इधर. ठीक है गाइज, let's go to some questions. We will understand some questions based on this. ओके, सी इसके लिए तुम्हारे पास में कैलकुलेटर है. यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन कैलकुलेटर. फॉर अस नाउ समवेयर देयर विल बी विदाउट कैलकुलेटर वाले, सॉरी क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल साइन रूल वाले क्वेश्चंस, बट वी विल एक्सक्लूसिवली लुक फॉर द ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस. ठीक है? we have done guys, we have done area of sector, area of like arc length wale questions as well, right? Theta upon 360 wala, they were in radians as well, correct? Okay, everyone, now we have understood the concepts. Let's try these questions. Everyone try solving this question. Everyone please try this question. You can refer your notes, whatever we have written earlier, you can refer those notes as well. Guys, how many of you understanding the question? Please raise your hands. Those who are understanding it, please raise your hands. Very good, guys. Nice. Badhiya. What?
Okay. Question is asking for area of sector OAB. OAB, area of sector. Sector means what? Sector looks like this. Yes or no? Correct. So area of sector के लिए we have written the formula theta r square upon 2. That's it. What is the area of sector? Theta r square upon 2. In this question, the length of segments OC. So OC and BC. OC is given as 8 centimeter and BC as P. So this entire length is how much? Entire will be 8 plus P or P plus 8. Whatever you write, it is right. Correct? Now you got the length of you got the radius. You just have to put it here. You know the theta. You just have to put it here. That's it. So pi by 3 into P plus 8 whole square upon 2. So pi upon 6 P plus 8 whole square. How many of you got this answer? Please raise your hands. Very good. If you have got this answer, very good. See guys, question itself is giving you hint. It already told you the area of sector. उसने कुछ और बोला ही नहीं यहाँ पे, right? Okay. Now, in this, you will have to apply the second now. Area of the triangle OCD. Everyone, please calculate area of the triangle OCD. Now, this you can do on calculator. अभी यहाँ पे show that बोला है, but तुम लोग फाइंड करो कैलकुलेटर के ऊपर, यू विल गेट द सेम आंसर. Guys, how many of you getting the answer? Raise your hands. अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली ये बोला है तो ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा. Guys, how many of you getting the answer? How many of you understanding the question? Raise your hands. Very good. Okay. Okay, how many of you got the answer? Raise your hands. ओके गाइज, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे? सी, दैट इज व्हाई वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस. और अगर तुम इसको सीरियसली नहीं लोगे तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट. समझ में आ रहा है? सिर्फ कॉन्सेप्ट कर लेने से कुछ भी नहीं होगा. यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. किसकी बात कर रहा है? एंड इन वन ऑफ द क्लासेस वी हैव डन दिस फॉर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल. फॉर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल we use sine rule to find side or angle. We use cosine rule to find side or angle. We use triangle rule. What is the triangle rule? Half a into b into sine c. That is nothing but if you have been given a triangle, if there is one angle, angle between sides, angle included between sides. मैंने तुमको ऐसे विक्ट्री वाला साइन भी दिखाया था, इसके लिए आई रिमेंबर. सो दो साइड्स के बीच में अगर एंगल है, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल.
So in this case, if you look here, you know this side, and angle between them, correct? So area of triangle will be what? Half. This side is 8, this side is also 8. 8 into 8 into angle is sine pi by 3. You use this rule, you will get the answer. How many of you understood it now? Please raise your hands. अच्छा, अभी तेरा कैल हाँ तो पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा. इफ योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन यू विल हैव टू यूज एंगल इन रेडियन. ठीक है. नाउ यू गाइज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू वेर ऑलरेडी नोइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला रूल. रेज योर हैंड्स दोज हु ऑलरेडी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला रूल. एवरीवन, राइट? बट why you were taking so long to apply it here? If you know, you have to apply. Question खुद ही बोलेगा. Getting it? Next part. Given that the area of shaded shape, okay. Given that the area of the shaded shape is this. Now I'll just do one thing. I'll take it on screen. Now you can do this directly in Nsolve. जो लोग सिर्फ एनसॉल्व के भरोसे बैठे हैं उनका कुछ भी नहीं होने वाला है. मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर तुम सिर्फ एनसॉल्व के भरोसे बैठे हो तो कुछ भी नहीं होगा. तुमको यही दिमाग लगाते नहीं आ रहा है कि कहां पे कौन सा लॉजिक यूज करना है. आर्यव ग्रोवर, हाँ, तुमको यही समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कौन सा क्या लॉजिक यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. क्या करेगा वो एनसॉल्व का? एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. Guys, everyone please try C. Guys, how many of you understanding the question? Raise your hands. Very good. Nice. बहुत बढ़िया. Good. What? No, I'll have to check whether answer is true or not. We will see. Let others also. Yes, Ashan, bolo. What is the answer? 2. अच्छा, तू नहीं बोला क्या? मुझे लगा हर्षिल ने बोला. ओके. साहिल, स्मेरा, are you getting it or not? क्यों नहीं? Don't look at it just from FA point of view. Yes, Ishan, answer is 2. Okay, guys. How many of you still want to try? I'm ready to give 1 more minute. If you... Okay, ठीक है. 1 more minute.
Okay, Smera, are you getting the answer or not? No, sir. No. Okay. Sahil, Harshil. Slow. Okay. They're so slow. Yeah. Crumbling inside. अच्छा. सी गाइज, क्वेश्चन इज, तुमको ये इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए बस. यू मस्ट नो हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन. सी दैट्स वाई मैंने ये यहां पे कॉपी करके वापस से दे दिया था. इधर देखो, अभी यहां पे किसी का कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा. देखो, गिवन दैट द एरिया ऑफ द शेडेड शेप एबीसीडी, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट इंटायर एरिया. पूरे एरिया की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? इंटायर एरिया. कौन बोला? क्या बोला इधर? एबीसीडी बोला ना. हाँ, तो शेप को क्या बोलेगा तू? हाँ, तो वही बोला मैंने. इसलिए मैंने पहले ही सेंटेंस क्या बोला कि आधे लोग तो इधर ही कट जाएंगे कि उनको लग रहा है कि ये शेप की बात चल रही है. शेडेड रीजन बोला है पूरा का पूरा. ट्रेपेजियम एबीसीडी बोला है. हाँ, नहीं. गेटिंग इट? ओके. सो इन्होंने क्या बोल दिया हमको डायरेक्टली? एरिया ऑफ द शेडेड शेप इज दिस. एरिया इज ऑलरेडी गिवन. व्हाट इज दैट? 50 पाई अपॉन 3 माइनस 16√3. करेक्ट. बट वो शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा कैसा? गाइज, मैंने तुमको एक कंडीशन सिखाई थी. दैट वाज व्हेन इंटायर सेक्टर का एरिया इज नोन माइनस ट्राइंगल का एरिया कर दोगे तो सिर्फ तुम्हारे शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा कि नहीं? इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस, जस्ट सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. यस और नो? करेक्ट. सो हियर अगर तुम ये कंडीशन लिख सकते हो कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ इंटायर सेक्टर ओएबी, देखो एरिया ऑफ इंटायर सेक्टर ओएबी इज ऑलरेडी रिटन हियर. सो पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया पता था हमको. एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओडीसी. ट्राइंगल ओडीसी का एरिया माइनस कर दो. और ओडीसी के लिए या ओसीडी के लिए हमारा आंसर ऑलरेडी 16√3 था. सो इट मीन्स व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई अपॉन 6 ब्रैकेट p प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 16√3. दिस इज इक्वल्स टू this which is given. How many of you understood this condition? Please raise your hands. Very good. Very good, Sahil. This is what I did. Yes, this is what you have to do. क्या नहीं मिला? क्या नहीं समझा? अरे बीड़ू, तुम जब बताता हो तब ध्यान दिया करो. आपस में गप्पे मारते रहते हो. हाँ, यहां पे मैंने क्या बोला कि यू ऑलरेडी नो दिस इंटायर सेक्टर का एरिया. यस और नो? इंटायर सेक्टर का एरिया यहां पे कैलकुलेट किया था कि नहीं? और बाद में ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया था कि नहीं यहां पे? सो ये सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे. दैट इज द शेडेड रीजन ना, रिमेनिंग वन. And that is what is also already given. Everything was given in question. Everything. You just had to formulate the equation, nothing else. अगर तुम इक्वेशन भी फॉर्मुलेट कर लेते तो भी आंसर आ जाता. नाउ पुट दिस इंटायर इक्वेशन इन जीडीसी एंड सॉल्व. पी का वैल्यू मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? एंड दोज हु आर स्टिल थिंकिंग कि सिर्फ एनसॉल्व से हो जाएगा, क्या करना है ये अगर पता होगा तभी एनसॉल्व से होगा. समझ में आ रहा है? How many of you got the answer now? Tried anyone after this, after writing the equation? Very good. Very good. Nice. Next. Wait. I'll give you time to take the screenshot. Look at this question. This you can solve on nsolve. Not nsolve. इसको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे हमेशा. किधर सॉल्व करेंगे? ग्राफ पे. ठीक है. सो हाउ टू सॉल्व इट ऑन ग्राफ? जाओ ग्राफ पे एंड देखो. पहले इसको थोड़ा सा तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा.
इधर सिंप्लीफाई कर सकते हो या तुमको दो सेपरेट ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, बट वेन एवर देर इज साइन का ग्राफ तो वो हमेशा रिपीट होते रहता है, साइन ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस, और दूसरा ऐसा कुछ तो बनेगा, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू, आइदर यू कैन मेक इट अ सिंगल थिंग कि एक काम करो, इसको 2 sin x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 1 लिख लो, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2. देन यू प्लॉट साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ सेपरेटली एंड हाफ का ग्राफ सेपरेटली एंड फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. एवरीवन प्लीज डू दिस एंड गिव मी द आंसर्स. आई गिव यू अ हिंट. ठीक है, वेरी गुड साहिल. अच्छा, अभी यहां पे एक और चीज करनी पड़ेगी. दोज हु डोंट नो आई विल एक्सप्लेन. सिर्फ साहिल का आंसर है अभी तक. व्हाट अबाउट अदर्स? ईशान, हर्षिल, स्मेरा. Here domain is given in degrees, so you should draw your graph in degrees. Yes. See guys, sin square x equals to half. So first I will plot the graph of sin square x. Sin square x. ठीक है. ये बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया. Here we will put 0 and x max I will put let's say 370. y minimum I will put, किधर जा रहा है ये, 0.00 में जा रहा है आंसर. So let's say minus 0.5, y maximum plus 0.5. Okay. देखो, दिस इज हाउ आई एम गेटिंग माई ग्राफ, राइट. मुझे 0 से 360 तक का ही ग्राफ चाहिए, तो हियर लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 0 आ गया, एक्स एक्सिस, और राइट हैंड साइड में 360 तक जा रहा है. गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग ग्राफ लाइक दिस? प्लीज रेज योर हैंड्स. It's not sin square x. देन व्हाट इज इट? 2 sin x. कौन बोला? I know, sir simplified it. Ishan, what I have done is I have taken this sin x to this side, I made it sin x whole square equals to half. Oh, but why? Because मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये इसको सेपरेट और इसको सेपरेट प्लॉट करूंगा, बोथ आर साइन, तो वो बहुत जगह पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, राइट? No, just intersecting it. नहीं कर रहा है क्या? इफ इट इज नॉट देन दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है. सो देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हाफ किया. सेकेंड ग्राफ आई विल प्लॉट जस्ट फॉर 1/2 इंटर, and I will find the intersecting points in 0 to 360 degrees. Getting it or not? How many intersection points you are getting, Ishan? 4. Sahil? 4. 45, 125. Yeah, Correct. Harshil, Smera, getting it or not? yes, sir. थिंग में जाओ, देखो जिनका ग्राफ खराब बन रहा है. गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, जिनका ग्राफ खराब बन रहा है, गो टू गो टू मेन्यू, विंडो जूम, विंडो सेटिंग. डोमेन कहां से कहां तक दिया है? 0 to 360. सो एक्स में मिनिमम वैल्यू 0 से छोटा कोई नंबर डाल दो, -2 -3, और एक्स से बड़ा कोई नंबर डाल दो, 370 380. तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो ग्राफ आएगा वो उतने ही डोमेन में आएगा. अगर वो होने के बाद भी तुम्हारा ग्राफ बहुत छोटा दिख रहा है, तो तुम देखो
साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है, मिनिमम होती है -1। तो तुम वापस मेन्यू विंडो जूम में जाके, विंडो सेटिंग में जाके y की मिनिमम वैल्यू -1 पुट करो, मैक्सिमम वैल्यू +1 पुट करो। +1 नहीं लेगा, ओनली 1 पुट करो। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, -1 plus 100. मेरा इंटरसेक्शन 4 पॉइंट पे हो रहा है। यस करेक्ट है, 4 पॉइंट पे होगा। वो 4 पॉइंट का क्या करूं? 4 पॉइंट का क्या करूं? गाइज वन मोर क्वेश्चन। देखो स्केच वाला क्वेश्चन तुम कैलकुलेटर में कर सकते हो और फिर तुमको तुम्हारे नोटबुक में ड्रॉ करना होता है या तुम्हारे पेपर में, वॉट एवर इट इज। ठीक है, एवरीवन प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे सब लोग। Guys, how many of you getting the answer? Very good. Now there are two ways of solving this question. जैसे हमने इंटरप्रेट किया था। पहला तो देखो साइन थीटा का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू दिया है? साइन थीटा इज -12/13। साइन थीटा इज व्हाट? सो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो पहले। तो ये एक सर्कल बनेगा, माइनस साइन हमेशा दो ही जगह पे होता है, या तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। किधर? थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो भी एंगल है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यस और नो? दिस इज द अपोजिट साइड, दिस इज द हाइपोटेनियस। अभी तुम बोलोगे सर माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं लूंगा क्योंकि वो साइन सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि कौन सी जगह पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। करेक्ट? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाला साइड निकालूंगा। करेक्ट? दिस साइड विल बी व्हाट? अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, दैट विल बी 5। कितना आ जाएगा? सो दिस साइड इज 5। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ कॉस एंड टैन। सॉरी, हाँ, कॉस एंड टैन। सो कॉस का वैल्यू रहेगा 5/13, टैन का वैल्यू रहेगा 12/5। हाउ मेनी ऑफ यू एटलीस्ट अंडरस्टूड दिस? रेज योर हैंड्स। राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैंने साइन और कॉस का वैल्यू निकाला है, दैट्स इट। राइट? वंस आई गेट दिस, वी नो ना कि दिस इज आइदर इन थर्ड और आइदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यस और नो? इफ यू कंसिडर इट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, देन कॉस का वैल्यू विल ऑल्सो बी नेगेटिव, tan का वैल्यू विल पॉजिटिव, बिकॉज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज ओनली पॉजिटिव। बट इफ यू थिंक इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन यू विल गेट वैल्यू cos का आ जाएगा 5/13 बिकॉज cos इज पॉजिटिव, एंड tan का आ जाएगा 12/5 नेगेटिव बिकॉज tan इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? प्लीज रेज योर हैंड्स। देयर वाज अ सिंपल लॉजिक। व्हाट वाज दैट? लॉजिक वाज दैट सिंपल कि हमको जो cos का वैल्यू दिया है इट इज -12/13। सॉरी, साइन का जो वैल्यू दिया इट इज -12/13। साइन इज ओनली नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट क्वाड्रेंट इट इज इनटू, यस और नो? सो दैट्स व्हाई मुझे दोनों क्वाड्रेंट को कंसिडर करके आंसर निकालना पड़ेगा। सो मैंने पहले ये क्वाड्रेंट कंसिडर करके जो साइड निकाल ली थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव,
इसलिए ये वाले आंसर्स निकले मेरे दो। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करता तो यहाँ पे कॉस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा, टैन नेगेटिव रहेगा। समझ में आया कि नहीं गाइज? ओके या अभी देखो, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं पॉजिटिव कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, अगर साइन थीटा पॉजिटिव होता तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं सेकंड को पॉजिटिव समझता तो मेरा कॉस निगेटिव आता, कॉस क्या आता, और टैन भी निगेटिव आता, बिकॉज बोथ साइन कॉस एंड टैन आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये दोनों निगेटिव हो जाते हैं। अगर फर्स्ट कंसिडर करता तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहते, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस लॉजिक। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रुको जरा गाइज, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। Everyone please try question number 5. How many of you understanding this question? Please raise your hands. Very good guys, very good. कितने लोगों का आंसर आ गया है? ओके क्वेश्चन ने मेंशन किया है ना? क्या नहीं किया है? क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। Guys, look here. A sector of a circle OPQ is such that the angle at its center is 5 pi upon 6. So those who are getting confused, सर्कल इमेजिन करो, सर्कल के अंदर एक सेक्टर इमेजिन करो, करेक्ट, राइट? एंगल कितना दे दिया है?
5 pi by 6. It is talking about this part. Imagination तो कर सकते हो ना, right? Second, the area of the sector in centimeters square is 1/5 of the length of the arc PQ in centimeters. Means what? Area of sector, लिखो ना फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2 इज द एरिया ऑफ सेक्टर, is 1/5. This is 1/5 of length of the arc. Arc length का कितना है ये? 1/5. So this is the equation you are getting here. How many of you got this equation? Raise your hands, guys. Only one. What about Sahil? डायरेक्टली बेटा कैसे भी स्टार्ट करो, ये इक्वेशन पे तो आना ही पड़ेगा ना. हाँ अच्छा ओके. कितने लोगों को समझ में आया है अभी बताने के बाद में? रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. नाउ वंस यू डू दिस, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर? देखो ये थीटा अपॉन टू आर स्क्वायर है अपॉन 2 इक्वल्स टू थीटा आर अपॉन 5. ऐसा दिख रहा है बस. यहां पे बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे हैं. होगा क्या इनसॉल्व में सॉल्व? ए हीरो देख ऊपर देख, होगा क्या इनसॉल्व में सॉल्व? हाँ. सो देखो थीटा थीटा इज गेटिंग कैंसल्ड. वन रेडियस विल गेट कैंसल. सो यू गेट रेडियस इक्वल्स टू 2 अपॉन 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 2 अपॉन 5. 2 अपॉन 5 इज नथिंग बट 0.4. कितना है? मिल गया रेडियस 0.4. वंस यू गेट द रेडियस, नाउ इट इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर अगर बोल रहा है तो इसी फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू 5 पाई अपॉन 6 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 0.4 स्क्वायर पुट करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे. दिस कैन बी सॉल्व इन कैलकुलेटर नाउ. हाँ क्या गाइज? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट नाउ? प्लीज रेज योर हैंड्स. Very good. There is one more good question on the way. Okay, guys, next question. Guys, I hope you have written this down. Okay, next question. Actually इसमें ना in your final exams as well थोड़े questions arc length वाले बहुत सारे आते हैं. Yeah, this one. Look at this. एक सेकंड में पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ. Who you want? हाँ ईशान. Means whenever I take class, you call randomly to anyone in class and you ask them what are you doing, where are you? हाँ क्या क्या? Okay guys, read this question and please try.
Guys, how many of you understanding this question? Please raise your hands. Very good. Nice. Yeah, possible. Yeah. Sir, I can't use this calculator, sir. Guys, how many of you getting the answer? Please raise your hands. Sir, I am getting the answer, but I can't use this calculator for. Hello. How many of you were able to solve this question? Please raise your hands. After this, we are going to solve one very interesting question that is from your past paper only. ठीक है? At least guys, मुझे reply तो दो. Let me see how many of you are there. Yeah. See. Can you? The diagram below shows the sector of the circle OAB. So OAB is one sector. The angle is pi by 6. ठीक है. Point M is the midpoint of line segment OA. M is midpoint of OA. Okay. M is midpoint of OA. And the shaded region is the combination of the triangle ABM. ABM with the region enclosed by the arc AB. AB. ठीक है. Show that the ratio of the area of triangle OMB to the area of the shaded region. अरे भिड़ू क्या बोल रहा है? Area of triangle to area of shaded region. So मैं लिखता हूं ऊपर area of triangle upon area of shaded region. Correct? Area of triangle upon area of shaded region. 8.06. Correct? Now you see क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी रेडियस दिया है क्या? नो रेडियस इज गिवन. सो आई विल टेक रेडियस एज आर. रेडियस को क्या ले लेता हूं मैं? रेडियस इज आर. सो दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट? आर अपॉन 2. और इफ यू वांट टू बी मोर क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं जाना है तो टेक टोटल रेडियस एज 2r. सो दिस डिस्टेंस विल बी आर. गेटिंग इट और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? रेज योर हैंड्स. करेक्ट. How is that logical? R कैसे बनेगा? वो पूरा सर्कल. क्वेश्चन पढ़ क्या दिया है? एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. एवरीथिंग इज गिवन इन द
question. So M is the midpoint of OA and OA is itself the radius of the circle. Correct? That's why. Understood? Now area of triangle. Area of triangle मतलब कौन सा? The area of triangle OMB. OMB triangle की बात कर रहा है. कौन से एरिया की बात कर रहा है? OMB triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल OMB क्या होगा मित्रों? एरिया ऑफ ट्रायंगल OMB होगा हाफ रेडियस इंटू 2 टाइम्स रेडियस इंटू साइन 5 पाई बाय 6. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक? व्हेन आई नो वन ट्रायंगल एंड 2 साइड्स enclosing one angle in them, I can use area of triangle wala rule. How many of you understood this point? Please raise your hands. Knowing formula won't be enough. हमको उसको हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, राइट? सो हियर आई एम यूजिंग साइन रूल, कोसाइन रूल. तुमको अभी ऐसे सेपरेट क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि एक ट्रायंगल दे दिया साइन रूल यूज करना है, दूसरा ट्रायंगल दे दिया कोसाइन रूल यूज करना है. समझ में आ रहा है? इट विल ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन एंड यू विल हैव टू इंटरप्रेट इट. सो ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया ऊपर का, ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग एरिया ऑफ शेडेड रीजन. यहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट इट्स आस्किंग. देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कैन आई नॉट राइट दिस एज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल? मतलब ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस एज वेल? प्लीज रेज योर हैंड्स. गाइज यस, ठीक है, सिंपल सी चीज है. एंड आई नो एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल ऑलरेडी एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो मैं इधर लिख ही सकता हूं. तो ये क्या आ जाएगा? देखो 1/2 2 टाइम्स r स्क्वायर साइन 5 पाई बाय 6 अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा इंटू r स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल. क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल दैट इज अगेन जो न्यूमरेटर में लिखा है वही हाफ 2r स्क्वायर इंटू साइन 5 पाई बाय 6. अभी तुम साइन पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर में. तुम्हारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन पाई बाय 6 की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आती है? टेल मी गाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 6? 13 to 1 150 150 हाफ. साइन पाई बाय 6 इज हाफ. एम आई राइट? Sin pi by 6 is half. It means what is happening here? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, r स्क्वायर आ गया एंड sin pi by 6 is half again अपॉन यहां पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 64 5 pi by 6 इंटू 4r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2. दैट्स इट. कुछ भी नहीं किया मैंने. यहां पे जो सिंप्लीफाई किया था एज इट इज यहां पे लिखा, यहां पे जो सिंप्लीफाई किया एज इट इज यहां पे लिखा. नाउ इन दिस इंटायर क्वेश्चन इफ यू सी, तुम्हारे पास में आंसर दिख रहा है, तुमको सिर्फ उसको वहां तक लेके जाना है. न्यूमरेटर में क्या है? 1 है. व्हाट इज इन न्यूमरेटर? इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर से क्या करना है? r स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टराइज करना है. इफ आई फैक्टराइज r स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम हियर, व्हाट आई गेट? ये r स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकल गया तो यहां पे मिलेगा 20 अपॉन 6. सो ये 2 जा, ये 3 जा, सो ये जगह 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 माइनस यहाँ का 1, ये कैंसिल हो जाएगा. योर आंसर विल बी 1:10 पाई बाय 3 माइनस 1. दैट्स इट. पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, मुझे पूरा का पूरा दिमाग बस लगाना था यहाँ पे पहले पार्ट के ऊपर कि मैं रेशो किसका लूं, और रेशो किसका लेना है क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया था, इसलिए मैंने पहले ये पॉइंट लिख लिया एंड अकॉर्डिंगली जो जो कॉन्सेप्ट लगता गया मैं वो फॉर्मूलाज जस्ट पुट करता गया. दैट्स इट. एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पूरा ट्रायंगल, पूरा सेक्टर रहेगा. इट इज आस्किंग जस्ट फॉर शेडेड, तो मुझे इस वाले ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे सेम जो ऊपर का ट्रायंगल था उसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा. गाइज दोज हु अंडरस्टूड इट प्लीज रेज योर हैंड्स. दोज हु अंडरस्टूड इट प्लीज रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. ये वाला here I just put down the value of sin 5 pi by 6. Sin 5 pi by 6 is nothing but half. Yes or no? Yeah. ये 2 2 कैंसिल हो गया
ये आर स्क्वायर था तो ये आर स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और यही जो है वही तो है, ये यही तो है वो, गेटिंग इट और नॉट, Okay. राइट? समझा क्या बिडू? मेरे को समझा, मैंने क्या There निकाला you are just होगा। simply putting in the small triangle का this, right? As in your minus. यस, मैंने ये आर स्क्वायर को फैक्टराइज कर लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है 1 आने वाला है न्यूमरेटर में, सो इसका मतलब इसलिए मुझे 1 मिलना चाहिए, इसलिए किया मैंने. So now that these two are different parts or the same part? इट इज द सेम पार्ट, दे आर द सेम पार्ट. यहां से आगे चल रहा है क्वेश्चन. इसके बाद का स्टेप ये है, फिर इसके बाद का स्टेप ये है. ओके, हर्षिल जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड शेयर ऑन ग्रुप. मुझे बस एक बार ये मिटाने दो. या टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड शेयर ऑन ग्रुप. ठीक है, ओके. नाउ गाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. किधर गया? लुक एट दिस क्वेश्चन. अभी इसमें सी और डी नहीं देखना है हमको अभी. वी आर नॉट लुकिंग एट सी एंड डी. इट इज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एवरीथिंग. बट नाउ यू टेल मी. देखो, तुम लोग बोलते हो ना कि एवरीथिंग इज ऑन कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर. दिस फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व ऑन कैलकुलेटर. ये सेकंड क्वेश्चन में शो दैट करना है. नाउ व्हेन यू हैव टू शो, यू कांट यूज कैलकुलेटर. गेटिंग इट? यू हैव टू यूज आइडेंटिटीज ओनली. गेटिंग इट और नॉट? बट नाउ वी हैव नॉट लर्न डबल एंगल का आइडेंटिटीज येट, इसलिए हम इसको यहां पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तुम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. मैं तुमको बस ये दिखाना चाह रहा था कि यू कांट एक्सपेक्ट ऑल क्वेश्चंस ऑन एनसॉल्व. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. आर्यव, समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग. गाइज यू हैव टू यूज कैलकुलेटर. इसको ऐसे करने जाओगे तो शाम हो जाएगी. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर गाइज? ये तो सिंपल क्वेश्चन था कैलकुलेटर वाला. दोज हैव गॉट द आंसर प्लीज रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. चलो आगे. अभी देखो एक और क्वेश्चन है यहां पे हमारे पास. गाइस सॉल्व दिस क्वेश्चन.
देखो ये कंडीशंस ना ऐसे थोड़ी बाद में भी यूज होंगी, ठीक है। ये यहां के बाद आफ्टर रीडिंग दिस डायरेक्टली सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। आफ्टर सॉल्विंग दिस डायरेक्टली सॉल्व द guys, how many of you getting the answer for this one? Please raise your hands. Yes, very good. Formula booklet किधर है तेरा? Where is your formula booklet? AIHL students should always carry formula booklet with them, no matter what. खाना भूल जाओ, formula booklet साथ में लेके रहना है. समझ में आया? B सॉल्व कर सकते हो तुम अभी B. सर इसमें QR 8 लेना है ना, या ट्रायंगल निकालो पहले PQR. ट्रायंगल PQR. So PQR. So PR is 12, QR is P, PQ is R, and QPR, this is 30. Correct, okay. consider a possible triangle with QR equals 8. ये एक यूज करेंगे. सर तो यहाँ पे भी वही वाली कंडीशन लगेगी, सबका साथ सबका विकास, दो साइड्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए. पता है, तो जो एंगल पता है उसके हिसाब से यूज करेंगे. कौन सा एंगल पता है यहाँ पे? P वाला. तो ये इक्वेशन में तो इसको P लिखेगा, ये एंगल P बन जाएगा. P स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट एवर इट इज. QR equals 8. या QR को बाद में 8 लेंगे. फॉर सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू टेक QR एज 8. फर्स्ट वाले को भी लेना ही पड़ेगा. अरे फर्स्ट वाले को मैंने बोला ना भाई कि नहीं लेना है फर्स्ट वाले को. फर्स्ट वाले में P की वैल्यू दी है क्या उन्होंने? P स्क्वायर है कि नहीं क्वेश्चन में? तो वहां पे पुट करना है क्या? नहीं करना है. फर्स्ट शो ए. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने ट्रायंगल सही निकाला है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रॉन द राइट ट्रायंगल? प्लीज रेज योर हैंड्स. राइट मतलब नॉट 90 डिग्री वाला, सही ट्रायंगल किसने निकाला है? सबने निकाला है. वेरी गुड. नाउ वंस यू ड्रॉ द करेक्ट ट्रायंगल, क्वेश्चन इज सेइंग शो दैट दिस रूल. अभी देखो इन क्वेश्चन इट इज टॉकिंग अबाउट आर स्क्वायर. किसकी बात कर रहा है ये? आर स्क्वायर की बात कर रहा है. आर स्क्वायर -12 √3r वॉट एवर इट इज. करेक्ट.
मैं एक काम करूंगा, मुझे क्या पता है क्वेश्चन में, मुझे ये एंगल पता है बस. व्हाट डू आई नो? दिस एंगल. And in cosine rule, if you remember, we always write cosine rule like this: a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a. Right? This is our cosine rule. 2bc. इधर मैंने a square लिखा है ना, right? So whatever value you are using in equals to उसी का एंगल होना चाहिए. a square है तो a का एंगल लूंगा, करेक्ट? सो इट मीन्स हियर आई नो दिस 30 एंगल, इसके अपोजिट में P है. कौन है? तो मैं इस फॉर्मूला को P के फॉर्म में अरेंज करता हूं. किसके फॉर्म में अरेंज करता हूं? P के फॉर्म में. सो आई विल राइट डाउन P स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर. रिमेनिंग साइड इज R स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 12 इंटू R cos 30. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज रेज योर हैंड्स. ठीक है, वेट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस ऑफ. ठीक है, लिखो बेटा, फिर मैं लिखना चालू करूंगा, तुम बोलोगे सर लिखने नहीं देते हो. बराबर लिखा क्या? नेक्स्ट, P स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 cos 30 इज, कैलकुलेटर पे तुमको अभी ये ऐसे निकालना पड़ेगा. अभी जितने लोग यहां पे cos 30 को क्या बोला तूने? 0.15. अच्छा, जितने लोग यहां पे cos 30 का वैल्यू इसमें लेंगे, किसमें लेंगे? डेसिमल में, वो लोग फंस जाएंगे. रीजन बीइंग, क्वेश्चन इज आस्किंग टू प्रूव दिस. अभी ये मैंने खुद से बनाया नहीं है क्वेश्चन, ये तुम्हारा एडिशनल हायर लेवल पेपर 2 का क्वेश्चन है. गेटिंग इट? पास पेपर का ही क्वेश्चन है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन इसमें? एंड हियर यू कांट यूज एनसॉल्व बिकॉज एनसॉल्व विल गिव यू दिस आंसर. cos 30 का आंसर एनसॉल्व में क्या आ रहा है बताओ? एवरीवन प्लीज गिव मी cos 30. Here it is in degrees. So cos 30 का आंसर कितना आता है एनसॉल्व में? टेल मी. सॉरी, एनसॉल्व नहीं, कैलकुलेटर में कितना आ रहा है cos 30 का आंसर? 0.15. You can't use that. You will have to use √3/2. क्या यूज करना पड़ेगा? So when you use √3/2 here, √3/2, so these two will be cancelled. Getting it? These two will 12 times R. Okay, so this is what you need to remember. There is no escape from this. Getting it? अभी वो कैसे याद करना है उसके लिए मैं तुमको टेबल बता दूंगा, डोंट वरी. अभी इसको सिंप्लीफाई करो. देखो ये 2 कैंसिल हो गया. इसके बाद आंसर क्या आएगा? P स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 144 माइनस 12√3 टाइम्स R. और ये P स्क्वायर को तुम अगर राइट साइड में लेके चले गए तो ये हो जाएगा माइनस P स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा इक्वल्स टू 0. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? प्लीज रेज योर हैंड्स. For B you got 3.6. okay. How you get two values? wait. Now guys, once you get this equation, what you have to do? This second condition यहां पे यूज करनी है. Calculate the two corresponding values of PQ. PQ is nothing but R. तो यहां पे तुमको QR की वैल्यू 8 सेंटीमीटर को यूज कर लेना है. 8 सेंटीमीटर को क्या कर लेना है? यूज कर लेना है. समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, गया मेरा बस नहीं. सो यू पुट P स्क्वायर एज, P स्क्वायर कितना है? 8 स्क्वायर इज 64. सो व्हेन यू डू, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? R स्क्वायर प्लस 144, दिस इक्वेशन इज व्हाट यू हैव टू यूज. R स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स √3R प्लस 144 माइनस 64 इक्वल्स टू 0. व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इन एनसॉल्व, अभी तुम इसको एनसॉल्व करो या फिर तुम इसका डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर लो. वॉट एवर एक्स इंटरसेप्ट यू गेट, वो तुम्हारे 2 R की वैल्यूज है. वॉट आर दे? 2 वैल्यूज ऑफ R. गेटिंग इट और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. मतलब बच्चे सुनते ही नहीं है यार. इसे मैंने लिख के भेजा है पूरा एकदम कि PDF ही चाहिए,
फिर भी मुझे फोटोज भेजेंगे। भाई तेरा पेपर देखा मैंने, देखने के बाद चेक। गाइस सी ट्राई करो अभी, सी, एवरीवन ट्राई सी। गुड, those who have solved C, very good. What? एक, guys, how many of you getting the answer for C? Raise your hands. Very good. Nice. So I'm not getting the answer, not in graph, not in answer, all in it. देखो, आर स्क्वायर -12√3, अभी इन लोगों को कैलकुलेटर, इधर ग्राफ है, सी, एक्स स्क्वायर -12√3 एक्स प्लस, अभी 144 माइनस 64 कितना होगा, 80 होगा, प्लस 80 इंटर, क्या रे गधे, देख इधर। What did we do different? हाँ, Exactly, that's what we put. We put the same things. मेन्यू, हाँ तो तुम्हारा ग्राफ जूम्ड इन होगा ना भाई, उसको जूम आउट करो। When you zoom it out, you get two intersecting points here. Find two intersecting points. अभी मेरा इंटरसेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, ये इसको बहुत ग्लिच हो जाता है ये। क्या रे ईशान, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सॉफ्टवेयर? Yeah, so I don't know what is the problem, but sometimes it's glitches, but thank you very much, you gave it to me to operate. I am like very thankful to you. हाँ ठीक है, but it glitches, that's the problem. Just you find the intersection, you look at the values. Harshil, Smera, are you guys getting it or not? Harshil? Yes, sir. Yes, okay. नेक्स्ट तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। अभी यहां पे जो तुम्हारी स्मॉलर वैल्यू आ रही है, यू विल यूज दैट स्मॉलर वैल्यू टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस और नो? हेलो, या, और रेंज के लिए तुमने क्या किया होगा? व्हाट यू हैव डन फॉर द रेंज?
What? The joint where you can see on the graph when Should I it put the center of 3 and the x in the point same list? Right. Okay, The let's. reason why it was coming along is because me and Arya were putting root 3x. Guys, paper 1, AHL May 21, May 2019. Try this question. Everyone. Last question of the day. Okay. Guys, how many of you got the answer? Please raise your hands. Very good, guys. Now, how many of you are understanding what we are doing? मतलब समझ में आ रहा है ना जो भी हम कर रहे हैं? Okay. So now you will understand कि why I like तुमको बोलता हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो. सिर्फ एनसॉल से पूरा का पूरा होगा नहीं होगा कह नहीं सकते. Right? So two lengths of two sides of a triangle are 4 centimeter and 5 centimeter. Let theta be the angle between the two given sides. The lengths of two of the sides in a triangle. अच्छा एक ही ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है एंड एक साइड 4 है एक साइड 5 है. The length of the two of the sides in a triangle 4 and 5. Let theta be the angle between the two given sides. This is the theta. The triangle has an area. What is given? Area is given. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? So half into a into b into sine c, that is theta for me, that is equals to 5 root 15 upon 2. Correct? So this 2 is cancelled, this 5 is cancelled, so sine theta is equals to root 15 upon 4. That is the answer. सर थीटा लेकिन अपने को पता है और नहीं थीटा नहीं पता.
How many of you understood? Please raise your hands. Those who have understood, please raise your hands. Very good. Nice. Now, there is a good question. This is a good question. Now you'll understand the importance of unit circle. Why I am saying this is a good question, you'll understand the importance. How many of you trying question B? Please raise your hands. Very good. Very good. Nice. Try karo. Try karo. Yes, Ishan, bolo. So I got 5.6 and 7.1. Okay, let's check. Guys. बोल ना. इधर देखो गाइज, व्हाट यू डू. इधर देखो, इधर देखो. एनसॉल तो यूज करना ही है यहां पे. कैसे यूज करेंगे इधर देखो. सी गाइज, हियर इन फर्स्ट क्वेश्चन you got answer for, in first question you got answer for sin theta equals to root 15 upon 4. What you got? Sin theta equals to root 15 upon 4. What you do? मुझे एक बात बताओ, sin theta is positive in how many quadrants? गधा. 2 quadrants. कितना quadrants? 2 quadrants. The first one and the second one. Correct? And if you see sine ka graph, that's why I many times draw the sine ka graph. So root 15 by 4 will be some value which will be going from here. It means for this angle as well we are getting the same value, and for this angle as well I will get the same value. This is acute angle, this is obtuse angle. There are 2 types of triangles, acute triangles, obtuse triangles. Correct? So there will be 2 possible triangles here. So what I do, I will find out the value. I will find out the value of what? Value of 2 angles for which I will get root 15 upon 4. So first I will plot the graph of sin x. Sir, I didn't do that. Then what you do? Sir, I think sin inverse of this, I got one angle at 75.5. That is also fine. That is also fine. And then I did 180 minus 75.5. I got 104.5. So that's the second angle. And then I did cosine for 4. Correct? And then I got 5.6 then. Yes. Cosine of both. हाँ, yes, cosine rule use करेंगे बाद में. Correct. So here I will put down root 15 upon 4. Control root 15. अरे. Control root 15 divided by 4. So here I will get 2 intersecting points. So whatever those 2 intersecting points are, they are my angles. What are they? They are my angles. So once I get those angles, तो मेरा एक ट्रायंगल बनेगा कैसा? Acute, और एक बनेगा कैसा? Obtuse. So whatever 2 values you get using cosine rule will be your answer. How many of you understood this? Raise your hands. Very good. This is one way. Yes. 5.6 and 7.1, right? Yes, yes. सही है आंसर, मैंने पहले भी बोला. इट्स राइट. सेकंड ऑप्शन क्या है कि तुम इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स भी कर सकते हो. यू कैन डू साइन इनवर्स एज वेल. अगर तुम साइन इनवर्स करोगे, देखो ऐसे डांस करने लगता है बीच में. साइन इनवर्स करोगे, साइन इनवर्स रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटर. यहां पे एक ही वैल्यू दे रहा है. करेक्ट? ईशान, यस, दिस वैल्यू इज 75. करेक्ट? सो दूसरा वैल्यू क्या आएगा? 75 यहां से है,
तो 180 से भी 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो दूसरा वैल्यू मिलेगा. दिस इज हाउ यू गेट टू वैल्यूज. करेक्ट? राइट. So I just put the area of it on the graph and the function matrix. I just got Like I put area of, like I put 1 by 2, 4 into 5 sine x is equal, and then the second graph has 5 whole root 15 divided. That takes so much longer. But then I got both the values this and I just put an answer to find the. yes, that is also right. That is also right. ठीक है. So let's check on mark scheme. अभी वो चला गया होगा. हाँ ये चेक करो गाइज. यहां पे इवन इफ यू डायरेक्टली यूज कोसाइन रूल, कॉस का वैल्यूज भी मिल जाएगा तुमको. यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ कॉस एंड फॉर दैट टू वैल्यूज ऑफ कॉस यू कैन गेट वैल्यूज ऑफ एक्स एज वेल. ओके. अरे बोलो रे, यस और नो कुछ तो बोलो. हर्षिल, साहिल, मेरा. Yes, sir. ठीक है. ओके. अभी देखो हमने हमारा जो भी सिलेबस है फॉर क्या अपना क्या है अभी एफए में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है. ठीक है. एंड नाउ सी यहां पे जो दिया है ना फॉर दिस 2D स्पेस एंड 3D स्पेस वॉट एवर इट इज, ये हम 10th 9th में बहुत बार कर चुके हैं और इस पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आएगा. आर्क सीटा मतलब ये जो अपन ने सेक्टर्स वाले क्वेश्चंस किए, सेक्टर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सेगमेंट्स, ये हो गया. एलिवेशन, डिप्रेशन, फर्स्ट 3 यूनिट्स या फर्स्ट 3 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आर सेम एज योर 9th ग्रेड 10th ग्रेड. ये आगे की अपन ने डिस्कस कर लिए है. सो वी आर ऑफिशियली डन विथ अवर एफए का सिलेबस. आई जस्ट रिक्वेस्ट रिवाइज करो अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करो वापस से. जो मैंने ग्रुप पे भेजे थे ट्रिग्नोमेट्री वाले, वापस से सॉल्व करो. दैट विल बी इनफ. गेटिंग इट और नॉट? बोलो यस और नो. Yes. Okay. So that's it for today. I'll see you on Tuesday. Till then, bye bye. Good night. Take care. Sorry. Sorry. मेरा भी lunch बाकी है. Okay. Now one more thing, guys. एक second बस. Now we are left with only Markov's chains. Once your FA is over, Ishan Garkhedkar, we will start with Markov, okay? In this week only. फिर तेरे दिल को ठंडक मिल जाएगी. या हाँ, फिर भी तेरे दिल की ठंडक पूरी नहीं हुई होगी, मिल जाएगी, टेंशन मत ले. ओके, चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.